This video covers the short question of the Model Paper 2026 with well-explained answers designed to help you secure full marks in the examination. Question number 1 is define deadlock with an example. आपने deadlock को define करना एक example के साथ और उसका alternate question है what is the role of data visualization in the data science process? Define deadlock with an example. Definition. Deadlock is a situation in which two or more processes becomes permanently blocked. Deadlock एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोसेस परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाती है और वो किसी दूसरे रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं. ये मेरे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 और ये मेरे पास प्रोसेस 2 है. प्रोसेस 1 P1 and process 2 P2. This is resource 1 and this is resource 2. Resource 2. Okay. P1 is waiting. This is waiting for resource 2 and resource 2 is assigned to process 2 and process 2 is waiting for resource 1 and resource 1 is assigned to process 1. So this is an example of deadlock. Each process holds a resource and wait for another resource held by another process. Example is process P1 hold resource R1 and request resource R2. While process P2 hold resource R2 and request resource R1. Neither process can proceed resulting in a deadlock. तो इनमें से कोई प्रोसेस भी आगे मूव नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा deadlock. Just I have given an example of deadlock. Process P1 waiting for resource R2 and R2 is assigned to process P2 and P2 waiting for resource R1 and R1 is assigned to process P1 and this situation becomes a deadlock. Okay. Question number 2. What is the role of data visualization in data science process? Data visualization presents data in graphical forms such as charts and graphs. अगर डेटा हम charts और ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो what we will get the benefit? It helps in understanding large and complex data set. हम बहुत से बड़े डेटा सेट्स को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Third point is about data visualization. It allows identification of patterns and trends in data. हम इससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि डेटे का ट्रेंड्स किस तरफ चल रहा है. ठीक है, जैसे कि लाइन चार्ट से हम किसी भी डेटे को एनालाइज कर सकते हैं
कि ये इसकी ग्रोथ किस एंगल में हो रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसको हम पैटर्न और ट्रेंड्स कहते हैं। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो हम इससे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, हम कर्व को देख के, हम चार्ट्स को देख के, डेटा के फिगर को देखते हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। हम कोई एक बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्ट शुड बी लाई विद इन दिस रेंज। Next question is, a user notices slow performance when running multiple applications on their computer. What system software function could be responsible for this issue? And what steps can be taken to optimize performance? System performance में process management आएगा। Process management में क्या होगा? The operating system shares CPU time among multiple running applications. जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन हो रही होती है उनको सीपीयू टाइम एलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम्स। इसलिए हम यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्स सीपीयू टाइम अमंग मल्टीपल रनिंग एप्लीकेशंस। सेकंड पॉइंट इसमें है मेमोरी मैनेजमेंट। तो सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे हम कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज कर सके कैसे। लिमिटेड रैम मस्ट बी डिवाइडेड अमंग एप्लीकेशंस व्हिच कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो हम कौन से स्टेप्स कर सकते हैं कि हम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। नंबर 1 इज क्लोज अननेसेसरी और बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो रही होती है जो बैकग्राउंड पे रन हो रही होती है, तो आप अननेसेसरी एप्लीकेशंस को क्लोज कर दीजिए। Second point is that increase system RAM to handle more process efficiently. आप सिस्टम की रैम को इंक्रीज करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। थर्ड पॉइंट इज यूज टास्क मैनेजमेंट टूल्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल रिसोर्सेज यूजेस। आप मैनेजमेंट टूल देखेंगे, मॉनिटर टूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस कौन कितनी मेमोरी ले रहा है और हम उसको कैसे उसको हैंडल करना, या हम उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं या नहीं। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, अ कंपनी वांट्स टू develop a system that quickly retrieves customer data from a large database. Which search algorithm would be most suitable for this task and how does it improve efficiency? बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी के पास बहुत बड़ी डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो उनमें से किसी एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या चीज यूज करेंगे जो कि एफिशिएंट हो। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, सर्च एल्गोरिदम। और वो हम कौन से सर्च एल्गोरिदम लगाएंगे जो एफिशिएंट होगा, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज मोस्ट सुइटेबल फॉर सर्चिंग डेटा इन अ लार्ज डेटाबेस। अगर वो लार्ज डेटाबेस होगी तो उसमें इजीली सर्च कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक अरे है या रिकॉर्ड है जो कि कितने रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, सपोज 0 से लेके ये लास्ट रिकॉर्ड है 1023, मींस चलते चलते कितने रिकॉर्ड होंगे, 1024 रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले हाफ सर्च करेगा, इसको हाफ में मिड फाइंड करेगा जो कि मिड आएगा इसका 512 पे। ठीक है, तो ये
पहले स्टेप में इसने क्या कर दिया, 512 रिकॉर्ड को सॉर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेगा, फाइंड करेगा 512 को, फिर 2 पे डिवाइड करेगा, तो आंसर इसके पास आएगा 256। यानी कि सेकंड स्टेप में इसने 256 रिकॉर्ड्स में से फाइंड करेगा। ठीक है, यानी टू बाकी सबको इग्नोर कर देगा। थर्ड स्टेप में इसको भी डिवाइड कर देगा, तो और इसके पास कितने रह जाएंगे, 128 रह जाएंगे। फोर्थ स्टेप में इसके पास रह जाएंगे 64, और चलते चलते ये उस रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपके पास 1024 रिकॉर्ड्स हैं या 1024 एलिमेंट्स हैं, तो इसको कितने स्टेप में एक्सप्लोर करेगा, ये 10 स्टेप में उसको वो फाइंड आउट कर लेगा। कितने स्टेप बने, 10 स्टेप इसके बने। और इसमें हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, log n होती है। ठीक है, log n होती है। अब अगर मेरे पास log n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास अगर log 1024 होगा तो इसका आंसर मैं 10 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 2048 होगा तो इसका मैं 11 स्टेप में फाइंड आउट कर लूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4096 होगा तो मैं 12 रिकॉर्ड्स में 12 स्टेप में इसको फाइंड आउट कर लूंगा। ये देखिए 5000 रिकॉर्ड्स को ये कितने स्टेप में परफॉर्म कर लेगा, 12 स्टेप में, इजी 12 स्टेप में ये फाइंड आउट कर लेगा। ठीक हो गया। और आपको पता है कि बाइनरी सर्च क्या काम करती है, बाइनरी सर्च उसका मिड फाइंड करती है। मिड से देखती है कि आपका जो सर्चिंग एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर हैं या लेसर हैं। अगर सर्चिंग एलिमेंट उससे ग्रेटर होगा तो वो लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देती है और राइट की तरफ मूव कर देती है, फिर उसका मिड निकालेगी, देखेगी कि सर्चिंग वैल्यू, सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग रिकॉर्ड जो मिड एलिमेंट है उससे कम है। अगर कम है तो लेफ्ट साइड मूव करेगी, अगर वो ज्यादा है तो वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी। तो इसमें देखिए it works efficiently when data is stored in a sorted order। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि डेटा मस्ट बी इन sorted order। अगर डेटा sorted order में नहीं होगा तो हम ये बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज बाइनरी सर्च repeatedly divides the search space into halves। जैसा कि मैंने बताया, आपके पास अगर 1024 रिकॉर्ड्स हैं, ये हाफ करेगी 512 पे, फिर हाफ करेगी 256 पे, फिर हाफ करेगी 128 पे, एंड सो ऑन इट विल मूव करेगी until it will reach to the searching element। तो इससे क्या होगा, this reduces the number of comparisons and allow faster data retrieval देन लीनियर सर्च। बजाय के लीनियर सर्च से ये क्या करेगी, डेटा को बहुत फास्ट से फाइंड आउट करेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर इसके पास 5000 रिकॉर्ड्स होंगे, 5000 रिकॉर्ड होंगे तो लीनियर सर्च कितना लेगी, लीनियर सर्च एटलीस्ट 5000 कंपैरिजन को लाजमी करना पड़ेगा वर्स्ट केस में। ठीक है, और जबकि अगर आप बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, मैक्सिमम इसको 12 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 12। अब देखिए 5000 कंपैरिजन और 12 कंपैरिजन में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE for a given set of predicted and actual values। Actual values are 35287 and predicted values are 2.5, 5.3, 1.8, 7.5 and 6.8।
स्टेप नंबर 1, राइट द MSC फार्मूला। हम क्या करेंगे, MSC का फार्मूला लिखेंगे जो कि इक्विवेलेंट होता है 1/n समेशन ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड ऑफ स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, एक्चुअल में से प्रेडिक्शन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और फिर इन सब को सम अप कर देंगे। कैलकुलेटेड स्क्वायर एरर्स। स्टेप नंबर 3 हमने क्या लिया, एक्चुअल वैल्यू 3 थी, प्रेडिक्टेड वैल्यू 2.5 थी, हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्विवेलेंट टू 0.25 के होता है। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, एक्चुअल वैल्यू इज 5, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 5.3, तो हमने इसका स्क्वायर लिया इक्वल टू 0.09। एक्चुअल वैल्यू इज 2, प्रेडिक्टेड वैल्यू इज 1.8, तो हमने इसका स्क्वायर लिया जो कि इक्वल आएगा 0.04 के। थर्ड इज 8 माइनस 7.5, इसका स्क्वायर लेंगे that is equivalent to 0.25. Next is 7 minus 6.8, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसका फिर स्क्वायर लेंगे that is equal to 0.04. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम कंप्यूट MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो हम क्या करेंगे 0.25, ये पहली वैल्यू निकली, ठीक है, फिर इसके बाद 0.09, 0.04, 0.25, 0.04 और ये कितनी वैल्यू थी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, हमने इसको सम अप किया 0.67 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.134। तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.134। तो आप इस तरीके से आप मीन स्क्वेयर एरर कंप्यूट कर सकते हैं। Alternate question is convert 2F08 in hexadecimal to octal and binary. You have to convert into octal and binary. Octal means with the base of 8 and binary means with the base of 2. Now I am making a truth table because hexadecimal means 2 raised power 4, mean 16 combination should be there. Okay, 1 2 3, one more 4. Here I will write 1 2 4 8. Code of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Here I will write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. For 0 code is there. For 0 I will write all value 0. For 1, if I want to 1, I will switch on only this one, this number 1. Okay, I will write here 1. The rest of all 0 0 0 0. Next I need 2. For 2 I will switch on only this 2. 1, rest all 0 0 0 0. Next for 3 I will switch on 2 plus 1 3. This is 1, this is 1. 2 plus 1 3, rest 0 0. Next for 4 I will get only 4 only. Switch on only 4. 1, rest of all 0. Next for 5 I will switch on 4 plus 1 5. 1 1, rest of 0. Next for 6 I switch on 4 plus 2 6, rest 0 0. For 7 I will switch on 4
plus 2 6 plus 1 7. Next 0. Remaining is 0. For 8 I will switch on only 8. Rest 0 0 0. For 9 I will switch on 8 plus 1 9. Remaining 0. For 10 I will write 8 plus 2 10. Remaining 0. For 11 8 plus 2 10 plus 1 11. Remaining 0. For 12 8 plus 4 12. Remaining 0. For 13 8 plus 4 12 plus 1 13. Remaining 0. 14 8 plus 4 12 plus 2 14. Remaining 0. For 15 8 plus 4 12 plus 2 14 plus 1 15. This is the truth table of 4 input. Okay. Now come to your questions. 2. I have written 0 0 1. 0 0 1 0 because if you will see 2 is this 0 0 1 0, this one. Okay. Next is F 1 1 1 1 tetra 1. If you will see in the table, F is this 1 1 1 1 1 1 1 1 1. All 1 are there. 4 times 1 are there. Next is 0, all 0. 8 8. See 1 0 0 0 0 mean 1 and 3 times 0. 1 and 3 times 0. You can convert hexadecimal to binary. 2 code is 0010 of 2. Then this one, this is F, and this is 0, and this is 8. Means 2F08 equivalent to this binary number. Clear? What you will do? Group binary digit in set of 3 from right. 0 0 1 0. फिर इसके बाद 1 1 1 1. फिर इसके बाद 4 0 0 और इसके बाद 1 0 0 0. आपने ये लिया था. तो अब मैं 3 3 के सेट बनाता हूँ. ये मैंने ये सेट बना लिया, फिर इसके बाद दूसरा सेट बन गया, और ये तीसरा सेट बन गया 3 3 का. ये सेट बन गया, और ये सेट अकेला रह गया. अब ये बाइनरी कोड होता है 0 का, ये होता है 1 का, और ये होता है 4 का, और ये होता है 7 का, और ये होता है 2 का, और ये 0. ये आ गया इसका ऑक्टल में. किसमें आ गया? ऑक्टल में. 027410 ऑक्टल में आ गया. Convert binary to octal. And list the scenario in which all the functionality is dealt by the front end only. When a website or application perform all operations on the client side without using a server. तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस प्लस यूजर इंटरेक्शन होती है. यानी आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो फ्रंट एंड इक्वल टू यूजर इंटरफेस, जिसमें यूजर का इंटरफेस होता है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, प्लस यूजर इंटरेक्शन. आप जिसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. Second point, when data validation, calculation, and user interaction are handled using front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. यानी ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रंट एंड के तौर पर यूज की जाती है. आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि HTML इज अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड. तो ये तीनों फ्रंट एंड की एग्जांपल्स है, HTML, CSS, and JavaScript. Examples include simple calculator, static website, and
फॉर्म वैलिडेशन विदाउट डेटाबेस एक्सेस, जो कि विदाउट डेटाबेस एक्सेस के साथ जो एप्लीकेशंस काम करती है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। Alternative questions differentiate between system software and application software with example. System versus application software. System software manages and controls computer hardware and provides a platform for running application. System software ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की नीड्स होती हैं। अगर सिस्टम को ये प्रोवाइड ना किया जाए तो सिस्टम रन नहीं करता। ठीक है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपके सिस्टम में विंडोज नहीं होगी तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल, as an operating system such as Windows or Linux, these are operating systems. These are as system software. इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो यूजर के लिए लाजमी होती है, सिस्टम के लिए लाजमी नहीं होती, हमारे अपने पर्पस के लिए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। ये हमारे पास कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और जनरल पब्लिक यूज के लिए भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर जनरल पब्लिक यूज के लिए, ठीक है, स्प्रेडशीट एंड वेब ब्राउजर, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपने अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनना है तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, लेकिन कस्टम बिल्ट आएगा, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो सिस्टम की जरूरत होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होती है जो यूजर की जरूरत होती है। Question number 2, fifth part. Write down any 4 application of a real-time operating systems, RTOS. One example is RTS, Air Traffic Control System. Second example is medical devices such as heart monitors and infusion pumps. क्योंकि आपको पता है कि RTS क्या होती है? Real time systems. A real time system is a system that gives output immediately within a fixed time. जो कि आपको आउटपुट इमीडिएटली प्रोवाइड करे, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। Third example is industrial automation and robotic control system. Fourth example is embedded system in automobiles such as anti-lock braking system ABS. और आपका ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी आएगा, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम जो कि टाइमर बेस्ड होते हैं, टाइमर बेस्ड। Next alternative question is, how does blockchain technology ensure security? Blockchain uses cryptographic hashing to secure data stored in blocks. क्योंकि blockchain security means keeping data safe, unchanged and protected from hacking using blockchain technology. Each block is linked to the previous block, making data tampering difficult. Third point is data is stored across a distributed network, reducing the risk of a single point of failure. Fourth point is any change in data is immediately detected by the network participants.